is the integral equation y x equal to lambda integral with limit 0 to 1 3x minus 2 into t by t dt with lambda is as a parameter has इसका करेक्टरिस्टिक नंबर फाइंड करना है, मीन्स आइजन वैल्यू फाइंड करनी है क्या आएगा। और यही क्वेश्चन पेपर में फिर से रिपीट हुआ था इस टाइप से। इधर लिखा हुआ द होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन फाइव एक्स माइनस लैम्डा विद इंटीग्रल 0 to 1 लिमिट 3x माइनस 2t 5t dt इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, 2 बार पेपर में आया था। सो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन दैट बाई एक्स इक्वल टू लैम्डा विद इंटीग्रल विद लिमिट 0 to 1 3x माइनस 2t बाई टी dt, और we can write yx equal to lambda and 3x minus 2 इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे इंटीग्रल विद लिमिट 0 to 1 t by t dt। लेट c equal to इंटीग्रल विद लिमिट 0 to 1 t by t dt। So by using the value of c, yx becomes lambda 3x minus 2 into c, or we can write by t equal to lambda 3t minus 2 into c। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सो बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ बाई टी, इक्वेशन 1 gives c equal to integral with limit 0 to 1 t by t means 3t minus 2 into lambda into c into dt, or lambda and c is constant, so integral with limit 0 to 1 t into 3t minus 2 dt, or c equal to lambda c integral with limit 0 to 1 3t square minus 2t dt, और lambda c integration with limit 0 to 1 3t square dt minus integral with limit 0 to 1 2t dt, और c equal to lambda c and integration of t square is t power 3 upon 3 with limit 0 to 1 minus 2 integration of t is t square upon 2 with limit 0 to 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो c equal to lambda c, this is equal to 3 into 1 upon 3 minus 0 minus 2 1 upon 2 minus 0, and ये lambda c into 1 minus 1 means lambda c into 0, or we observe that lambda is 0, so no characteristic number, so option D is correct here। Next question is, suppose lambda 1 and lambda 2 are the characteristic number and f1 and f2 are the corresponding eigenfunctions for the homogeneous integral equation 5x equal to 5x minus lambda integral with limit 0 to 1 2xt plus 4x square 5t dt। So solution, given equation is 5x
minus lambda integral with limit 0 to 1 2xt plus 4x square phi t dt equal to 0, or we can write phi x equal to lambda integral with limit 0 to 1 2xt plus 4x square into phi t dt, or phi x equal to lambda integral with limit 0 to 1 2xt phi t dt plus lambda integral with limit 0 to 1 4x square phi t dt, और phi x equal to lambda एंड 2x इंटीग्रल के बाहर लिखेंगे विद लिमिट 0 to 1 t phi t dt प्लस lambda 4x square इंटीग्रल विद लिमिट 0 to 1 phi t dt. So let c1 equal to integral with limit 0 to 1 t phi t dt and c2 equal to integral with limit 0 to 1 phi t dt. So by using the values of c1 and c2, phi x is lambda 2x c1 plus lambda 4x square c2, or we can write phi x in term of t phi t equal to 2 t c1 plus 4 t square c2, lambda मल्टीप्लिकेशन में है दोनों के. सो इस वैल्यू से फाई की इस वैल्यू से हम c1 कैलकुलेट करेंगे. तो c1 है हमारा 0 to 1 t फाई t मीन्स 2t c1 lambda plus 4 t square c2 lambda dt. So c1 equal to integration with limit 0 to 1 to t square c1 lambda dt plus integration with limit 0 to 1 t means t into t power 2 4 t power 3 c2 lambda dt, और c1 equal to c1 lambda एंड 2 बाहर लिखेंगे तो ये वैल्यू 0 to 1 t square dt प्लस 4 c2 lambda with limit 0 to 1 and t power 3 dt, और इंटीग्रेट करेंगे c1 equal to 2 c1 lambda integration of t square is t power 3 upon 3 with limit 0 to 1 4 c2 lambda and t power 4 upon 4 with limit 0 to 1. So फर्दर लिमिट पुट करेंगे तो c1 equal to 2 c1 lambda and 1 upon 3 plus 4 c2 lambda 1 upon 4, और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन राइट c1 minus 2 upon 3 c1 lambda minus c2 lambda equal to 0, और c1 कॉमन करते हैं तो ये वैल्यू 1 minus 2 upon 3 lambda minus c2 lambda equal to 0. सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है. नाउ अगेन we have
सेकंड इंटीग्रल से C2 कैलकुलेट करेंगे एंड विद लिमिट 0 to 1, ये वैल्यू 5t dt था, सो 2t लैम्डा C1 प्लस 4t स्क्वायर लैम्डा C2 dt. सो और C2 इक्वल टू इंटीग्रल विद लिमिट 0 to 1 2t लैम्डा C1 dt प्लस इंटीग्रल विद लिमिट 0 to 1 4t स्क्वायर लैम्डा C2 dt. और C2 इक्वल टू यहाँ से लैम्डा 2 C1 बाहर लिखेंगे, लिमिट 0 to 1 t dt प्लस 4 लैम्डा C2 बाहर लिखेंगे 0 to 1 t स्क्वायर dt. और C2 इक्वल टू 2 लैम्डा C1 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन 2 विद लिमिट 0 to 1 प्लस 4 लैम्डा C2 t पावर 3 अपॉन 3 विद लिमिट 0 to 1. और C2 इक्वल टू लैम्डा C1 2 एंड 1/2 से कैंसिल होगा, तो प्लस 4 लैम्डा C2 इंटू 1/3. और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव लैम्डा C1 प्लस 4 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 C2 इक्वल टू 0. सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है. सो इक्वेशन 1 और 2 से वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट मेथड से हम ये C1 C2 को नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेशन करेंगे. सो वी हैव 1 माइनस 2 अपॉन 3 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0. और 1 माइनस 2 अपॉन 3 लैम्डा 4 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0. और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 8 अपॉन 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2/3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0. और वी हैव 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0. और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी फॉर्मूला से माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 स्क्वायर मीन्स 324 प्लस 36 अपॉन 2. और ये माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट 360 अपॉन 2 मिलने वाला है. और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू मिला हमें माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट 360 अपॉन 2. और वी कैन राइट माइनस 18 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 10 अपॉन 2. और इसको हम लिखेंगे माइनस 9 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 10. सो यहाँ से लैम्डा 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 9 प्लस 3 अंडर रूट 10 एंड लैम्डा 2 लिख सकते हैं माइनस 9 माइनस 3 अंडर रूट 10. सो वी ऑब्जर्व दैट लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2.
एंड ये हमारा एक ऑप्शन करेक्ट आ गया। और बाई ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी ऑप्शन सी इज ऑल्सो ट्रू। सो यहां से बोल सकते हैं ऑप्शन इज करेक्ट। एंड इंटेग्रेशन विद लिमिट 0 to 1 f1 x एंड f2 x dx इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 है। सो यहां से हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें।